हेलो बच्चों, we are now starting part 3A of probability distribution, and as I have mentioned in my earlier videos, part 3 we will be solving examples based on probability distribution. Part 1 में I have given you the introduction of probability distribution. Then what are the types of variables, and also we have taken some small examples to explain you various parameters like expected value, standard deviation, variance in case of discrete random variable. There are two types of random variables. One is discrete, another is continuous. So we are now studying discrete. समझ गए बच्चों? तो अभी ये हम लोग एग्जाम्पल करेंगे ना. एग्जाम्पल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ मेकिंग टेबल्स. अभी बहुत से बुक्स में और गाइड्स में क्या होता है कि दे गिव द एक्सप्लेनेशन इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, और पैराग्राफ में ये एग्जाम्पल सॉल्व करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा. So please go through this video very carefully and see how the examples of discrete random variables in this topic of probability distribution can be solved easily without any mistake. समझ गए बच्चों? चलो अभी क्या एग्जाम्पल है. पहला एग्जाम्पल, let x represent difference between the number of heads and number of tails obtained when coin is tossed 6 times, and we have to find out what are the probable or possible values of x. अभी यहां देखो, हम लोग एक सिंपल सा प्यारा सा टेबल बनाएंगे. समझ गए बच्चों? कैसा बनाएंगे टेबल? अभी देखिए. We have to find difference. तो अभी देखिए, when you toss a coin 6 times, so number of times head appears. समझ गए? हेड appears, कितनी बार हेड आएगी. देन वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टाइम्स टेल appears. समझ रहे बच्चों? अभी ये एग्जाम में ये टेबल आप अच्छी तरह से बनाओ. अभी इसको हम बोलेंगे A, नंबर ऑफ टाइम्स हेड appears, we will call it A, and number of time tail appears, we will call it B. समझ गए बच्चों? Now we have to find difference between number of times head appears and number of time tail appears. Means we have to find out X, which is nothing but A minus B. अभी 6 बार you toss a coin, there is a first possibility that you don't get head any time. तो हेड कितने आए हमारे? 0. That time all 6 will be tail. बराबर है? समझ रहे? 6 बार कॉइन उड़ाया, एक भी बार हेड नहीं आया, all 6 times tail आया. Now out second case, out of 6, once I got head, तो balance 5 I got tail. अभी समझ में आ रहा है बच्चों? थर्ड केस, out of 6, 2 times I got head, तो balance 4 times I got tail. 3 times I got head, so balance 3 times I got tail.
4 times I got head, so only 2 times I got tail. 5 times I got head, once I got tail. बराबर है. And all 6 times I got head, so मुझे tail मिला ही नहीं. समझ गए बच्चों? तो ये हो गया सिंपल सा टेबल. अभी हमें a माइनस बी निकालना है. बराबर है. हमें a माइनस बी निकालना है. That is the difference. That is the difference. What we want to find out? What we want to find out? Difference between number of heads and number of tails. तो 0 minus 6 कितना? Don't get confused बच्चों. We have to find out number of heads minus number of tails. So I will write down here 0 minus 6. समझ गए? 0 minus 6. Here it will be 1 minus 5. Here it will be 2 minus 4. Here it will be 3 minus 3, 0. 4 minus 2 will be 4 minus 2. 5 minus 1. And 6 minus 0. These are the values of x. तो हमें आंसर कैसा लिखना है बच्चों? What values, possible values x is having. बराबर है. तो x will have values. वो हम लोग कैसे लिखते हैं? सेट के फॉर्म में लिखते हैं. 0 minus 6 minus 6. You have to write with proper sign. 1 minus 5 minus 4. 2 minus 4 minus 2. बाद में 0. 4 minus 2 2. 5 minus 1 4. 6 minus 0 6. तो ये जो डिफरेंस हमें x है वो कितने वैल्यू मिल सकता है? इट कैन बी आइदर माइनस 6 और माइनस 4 और माइनस 2 और 0 और 2 और 4. And this is what is our answer. समझ गए बच्चों? चलो दूसरा एग्जाम्पल. The urn contains, urn मतलब एक बर्तन है, 5 red and 2 black balls. अभी ये डब्बा है, बर्तन, urn. बराबर है. इसमें there are 5 red balls and 2 black balls. 2 balls are drawn at random. बिना देखे 2 बॉल हमने ड्रॉ किए. And X denotes the number of black balls drawn. What are the possible values of X? अभी यहां क्या है? ब्लैक बॉल है 1, ब्लैक बॉल है 2, और रेड बॉल कितना है बच्चों? रेड बॉल है 5. तो चलो यहां हम लोग देखेंगे. दिस इज 1 रेड बॉल, 2nd रेड बॉल, 3rd रेड बॉल, 4th रेड बॉल एंड 5th रेड बॉल. अभी आंसर क्या है हमें निकालना है? हमें ये निकालना है कि इफ x इज द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो 2 बॉल हमने निकाले हैं, तो 2 में से एक पॉसिबिलिटी है मुझे एक भी ब्लैक बॉल नहीं मिलेगा, तो 0 ब्लैक बॉल. देन मुझे 2 में से एक ब्लैक मिलेगा, एक रेड मिलेगा, तो 1. एंड दोनों के दोनों ब्लैक मिलेंगे तो 2. बराबर है. दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. मतलब आई कैन गेट आइदर 0 ब्लैक बॉल्स और 1 ब्लैक बॉल एंड 1 रेड बॉल, और both of the balls I can get black. These are the values of x. समझ गए बच्चों? चलो सिंपल एग्जांपल है. Now read this properly. Which of the following are not probability mass function?
ये उन्होंने दिया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है 0, 1, 2 इस टेबल में। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। हमें देखना है कि ये जो दिया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये पीएमएफ है क्या, नहीं है। तो बच्चों इफ यू हैव सीन द फर्स्ट वीडियो एंड इफ यू रिमेंबर, हमें दो कंडीशन है फॉर पीएमएफ। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑल प्रोबेबिलिटीज, मतलब ये जो इंडिविजुअल दिया है ना, मस्ट बी पॉजिटिव। 0 हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x all must be greater than or equal to 0। एंड सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों, सेकंड कंडीशन ऐसा है कि सिग्मा ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x should be exactly 1। These two conditions, if both these conditions are satisfied, then it is a PMF, otherwise it is not a PMF। जो PMF नहीं है उसको हमें कुछ लेना देना नहीं है। समझ गए बच्चों? चलो तो अभी क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करेंगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, all probabilities are greater than 0, 0.4, 0.4, 0.2 एंड मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, बराबर है। दूसरा कंडीशन क्या है, सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो हम लोग ऐड करेंगे 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, तो ये दोनों तीनों मिला के कितना हो गया 1। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, देयरफॉर गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज पीएमएफ। समझ गए? ये दो रीजन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया है दैट इज पीएमएफ। समझ गए? अभी ये दूसरा एग्जांपल, फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट, ऑल आर पॉजिटिव। अब यहां एक ये चीज याद रखो, x कैन हैव एनी वैल्यू, इट कैन बी 0, इट कैन बी -1, इट कैन बी +1, इट कैन बी 100, इट कैन बी 3/4, एनीथिंग, but probability should always be less than or equal to 0, no more than or equal to 0, मतलब पॉजिटिव, एंड सबका एडिशन कितना होना मांगता है 1, बराबर है। तो ऑल प्रोबेबिलिटी x आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहां 0 है लेकिन बाकी का सब पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड सिग्मा प्रोबेबिलिटी कितना आएगा बच्चों, इफ यू ऐड दिस 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.05 it become 0.95 which is not equal to 1, therefore ये ऐसा लिखने का, it is not PMF। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया लेकिन दूसरा हुआ क्या, नहीं हो गया, सो इट इज नॉट अ PMF। समझ गए? अभी तीसरा देखेंगे, यहां क्या है देखो, कंडीशन नंबर 1, ऑल प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 0, सब पॉजिटिव है। दूसरा सिग्मा प्रोबेबिलिटी x कितना आता है 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2, तो ये हो गया 0.9 विच इज नॉट इक्वल टू 1,
हेंस नॉट PMF। और ये देखिए यहां फर्स्ट कंडीशन, प्रोबेबिलिटी व्हेन x is equal to 3 is 0.1, लेकिन ये माइनस है, सो इट इज लेस देन 0। तो दूसरा ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए, कुछ ऐड नहीं करने का। पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गया तो हम लोग खुला लिख सकते हैं नॉट PMF। समझ गए बच्चों, इतने आसान एग्जांपल है। चलो आगे। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, पहला क्वेश्चन, दिस 3 आर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, तो 3 अलग अलग हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व पहला, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। तो हमारे टॉस कितने हैं? 2। तो टेबल में रोज कितने होंगे? 2:2। समझ गए, ये रेस टू 2 है, इट बिलोंग्स टू दिस 2 टॉसेस। 3 टॉसेस होंगे तो 2:3 एंड 4 टॉसेस होंगे तो 2:4, तो दिस इज 4। तो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे हमारे? 4। समझ गए। चलो अभी मैं ये ऐसा टेबल बनाता हूं, टॉस नंबर 1, टॉस नंबर 2। अभी देखिए क्या हो गया, H H T T, ये अगर 4 है रोज तो पहला कॉलम में आधा आधा H आधा T लिखने का, HHTT, और यहां HTHT। ये हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स 1 में भी पढ़ा है। व्हेन देयर आर 2 स्टेटमेंट्स देन वी गेट इन द ट्रुथ टेबल 4 रोज, तो हम लोग क्या लिखते हैं? TTFF। तो यहाँ HHTT, यहाँ हेड का मतलब है, H का मतलब है हेड, T का मतलब है T। समझ गए बच्चों। चलो अभी देखिए आगे का, नंबर ऑफ हेड्स 0, नंबर ऑफ हेड्स 1, नंबर ऑफ हेड्स 2। 2 बार आप टॉस करेंगे तो इट कैन बी आइदर 0 हेड्स और 1 हेड और 2 हेड्स। अभी नंबर ऑफ हेड्स 0, तो दोनों टेल है, ये यहां देखो, तो टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया? 4, बराबर है। एंड दिस इज अनबायस्ड कॉइन, तो इन वन टॉस, probability of getting head is equal to half and probability of getting tail is also half। समझ गए। अभी 0 हेड है मतलब दोनों टेल है, टेल, तो probability of getting पहला टेल इज हाफ, probability of getting दूसरा टेल इज हाफ, तो ये हमारा हो गया 1/4। समझ गए। अभी यहां देखिए 1 टेल HT, यहां का प्रोबेबिलिटी हो गया हाफ इंटू हाफ, दैट इज 1/4। यहां का प्रोबेबिलिटी हो गया हाफ इंटू हाफ, दैट इज 1/4। सो यहां क्या आएगा? एडिशन ऑफ दीज 2, बिकॉज यहां भी टेल 1 है, यहां भी टेल 1 है, यहां भी हेड 1 है, यहां भी हेड 1 है, तो 1/4 प्लस 1/4, तो ये हो गया 1/2। और यहां नंबर ऑफ हेड्स 2, तो यहां हेड है दोनों, तो पहला हेड होने की पॉसिबिलिटी 1/4, दूसरा भी हेड होने की पॉसिबिलिटी 1/4, सो इट इज 1/4 नहीं, 1/2, 1/2, so this is 4।
सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए बच्चों? चलो देखिए हमने क्या किया, पहला हमने ऐसा ये ली टेबल बनाया, समझ गए? तो another example I will try to solve you in a simpler fashion. Coin is tossed 3 times. तो रोज कितने होंगे बच्चों? Number of rows in my first table will be 2 raised to 3 मतलब 8। अभी 8 रो है तो पहले रो में 4 बार हेड 4 बार टेल, पहले कॉलम में 4 बार हेड 4 बार टेल, दूसरे कॉलम में 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड 2 बार टेल, एंड थर्ड कॉलम में हेड टेल। समझ गए? तो ये टेबल मैंने आपके लिए बनाया है। अभी देखिए ये 8 रो है, समझ गए? ये 8 रो है, ये 8 रो है। तो पहले कॉलम में मैं क्या लिखा है? एच 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 टी 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 टी, आधा आधा करने का। देन इसका आधा इधर 2 एच 2 टी 2 एच 2 टी, फिर एच टी एच टी एच टी एच टी। वो पैराग्राफ के माफिक करने को जाएंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी हमें क्या निकालना है बच्चों? नंबर ऑफ टेल्स। समझ गए? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। तो देखिए सैंपल स्पेस हमारा कितना है? यहां 8, बराबर है। अभी नंबर ऑफ टेल्स, इफ आई राइट नंबर ऑफ टेल्स, यहां कितना है नंबर ऑफ टेल्स? 0। यहां कितना है? 1, बिकॉज यहां देखो तीनों हेड आया है तो 0 टेल, 2 हेड 1 टेल 1 टेल, यहां 1 टेल, यहां 2 टेल, यहां 1 टेल, यहां 2 टेल, यहां 1 टेल और यहां 3 टेल। तो अभी नंबर ऑफ टेल्स, इफ आई से x, इट कैन टेक अ वैल्यू ऑफ 0 1 2 और 3। समझ गए? 3 बार मैंने कॉइन टॉस किया तो पॉसिबिलिटी है आई विल गेट 0 टेल, आई विल गेट 1 टेल 2 हेड, 2 टेल 1 हेड और ऑल 3 टेल्स। तो देखिए यहां 0 1 2 3 ये इधर गया है। नंबर ऑफ टेल्स 0, नंबर ऑफ टेल्स 1, नंबर ऑफ टेल्स 2, नंबर ऑफ टेल्स 3। यही वैल्यू ऑफ x है। अभी 0 टेल वाले कितने हैं? यहां एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/8, तो px becomes 1/8। नंबर ऑफ टेल्स 1 वाले कितने हैं? देखो 1 2 3 4, 4/8, 1/2, बराबर है बच्चों? समझ गए? नंबर ऑफ टेल्स 1 1 2 1, यहां नंबर ऑफ टेल्स 2, यहां नंबर ऑफ नहीं, यहां देखो गलती किया हमने, नंबर ऑफ टेल्स 2 है इधर, तो हमें यहां कितना मिल जाएगा बच्चों? 3/8। सो आई विल राइट डाउन 3/8। समझ गए? टेबल बनाएंगे तो गलती हमेशा नहीं हो सकता है, गलती नहीं हो सकता है और हमको आज इमीडिएटली मालूम पड़ जाता है। यहां मैंने नंबर ऑफ टेल्स लिखने में यहां गलती किया। अभी दो टेल वाले कितने हैं हमारे? देखो ये एक है, ये एक है, ये एक है। सो अगेन 3/8
3/8। ये अच्छी तरह से ये 4 हमने गलती किया था, 3/8 और नंबर ऑफ 3 वाला 1/8। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? x 0 है तभी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, x 1 है तभी प्रोबेबिलिटी 3/8 है, x 2 है तभी प्रोबेबिलिटी 3/8 है एंड x 3 है तभी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। समझ गए? समझ गए बच्चों? चलो अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन। क्या था थर्ड क्वेश्चन? कॉइन इज टॉस्ड 4 times and we have to find probability distribution of number of heads. 4 times मतलब रोज कितने रहेंगे हमारे बच्चों? अभी आप बताओ मुझे। चलो, नंबर ऑफ रोज विल बी 2⁴ because we have tossed the coin 4 times. 2⁴ is 16. तो 16 अगर रोज है तो पहला कॉलम में 8 बार हेड 8 बार टेल, दूसरा कॉलम में 4 4 4 4, तीसरा कॉलम में 2 2 2 2 और चौथा कॉलम में हेड टेल हेड टेल। समझ गए? चलो ये देखिए मैंने लिखा है टॉस नंबर 1, टॉस नंबर 2, टॉस नंबर 3, टॉस नंबर 4। 8 बार हेड लिखा, 8 बार टेल लिखा, 4 बार हेड लिखा, 4 बार टेल, फिर से 4 बार हेड, फिर से 4 बार टेल। तीसरे में 2 2 2 2, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल और चौथे में एच टी एच टी। अभी 4 बार किया है तो हमारा एक्स क्या हो सकता है बच्चों? एक तो 0 हेड आएगा या 1 हेड आएगा या 2 हेड आएगा या 3 हेड आएगा या 4 हेड आएगा। बराबर है? अभी यहां हम लोग लिखेंगे हेड 0। यहां हेड कितना है? 4। यहां हेड कितना है? 3। यहां हेड कितना है? 3। यहां हेड कितना है? 2। यहां हेड कितना है? बराबर है? कुछ गलती तो नहीं कर रहे? 3। यहां हेड कितना है? 2। यहां हेड कितना है? 2। यहां हेड कितना है? 1। यहां हेड कितना है? 3। यहां हेड कितना है? 2। यहां हेड कितना है? 2। यहां हेड कितना है? 1। यहां हेड कितना है? 2। यहां हेड कितना है? 1। यहां हेड कितना है? 1 और यहां हेड कितना है? 0। तो अभी हमें देखना है आउट ऑफ 16 0 हेड वाला कितना है? 1। समझ गए बच्चों? चलो तो यहां प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में 0 हेड वाला कितना है हमारा? 1। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1 आउट ऑफ 16 बिकॉज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 16। अभी 1 वाला कितना है देखो बच्चों? 1 वाला 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4। तो एक बार हेड आने का चांस कितना है? 4/16। 2 वाला कितना है देखो बच्चों? 2 वाला 1 2 3 4 5 6, so it is 6/16। 3 हेड वाला कितना है देखो बच्चों? 1 2 3 4, 4/16। और 4 हेड वाला कितना है? एक ही है, तो 1/16। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा? 1/16, 1/4, 3/8, 1/4, 1/16। So this table is a probability distribution। बराबर है? अच्छी तरह से करेंगे तो गलती होने का चांस नहीं। और एक चीज है,
इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 1 आना मांगता है। यहां ऐड करेंगे, यहां ऐड करना आसान है बिकॉज ऑल डिनोमिनेटर्स आर 16। तो कितना आता है देखो, 4 + 1 + 6 + 4 + 1, 16/16। sigma probability of x is equal to 1 and all probabilities are positive, so this is PMF। समझ गए बच्चों, समझ गए? चलो, now read this example very carefully। read this example very very carefully। अभी coin is biased, coin is biased। अभी कॉइन उड़ाएंगे तो हेड आता है और टेल आता है। सो व्हेन द कॉइन इज बायस्ड, और व्हेन, फर्स्ट लेट अस से व्हेन कॉइन इज अनबायस्ड, probability of head is equal to probability of getting tail। दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी है। इसके लिए कौन सा भी क्रिकेट मैच होएगा, हम लोग टॉस करते हैं, दोनों कैप्टन को इक्वल चांस है टॉस विन करने का। एंड दूसरा क्या है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1। तो ये दोनों हाफ आते हैं इन अनबायस्ड कॉइन, बराबर है। बट हमारा ये कॉइन कैसा है, बायस्ड। सो वी विल से के आवर कॉइन इज बायस्ड गिवन कॉइन इज बायस्ड। और कैसा बायस है, हेड का प्रोबेबिलिटी 3 times than of tail। Head is 3 times likely to occur as tail, so probability of head is 3 times probability of tail। बट दोनों का एडिशन तो A1 में, probability head प्लस probability of tail is equal to 1। probability head की जगह में I will write 3 times probability of tail plus probability of tail is equal to 1। So I get 4 times probability of tail is equal to 1। So probability of tail happening is 1/4 and probability of head happening 1 minus 1/4, that is 3/4। So what important we got, probability of head is equal to 3/4 only in this coin because this is biased। एक बाजू शायद उसको वजन ज्यादा लगाया है, एक बाजू थोड़ा थिक किया है, एक बाजू थोड़ा पतला किया है। probability of tail is 1/4। ये याद रखो बच्चों इस एग्जाम्पल के लिए। अभी कितना बार टॉस किया कॉइन, 2 बार। सो नंबर ऑफ रोज कितना आएगा बच्चों, सिंपल है, देखो कॉइन कॉइन टॉस्ड, कॉइन इज टॉस्ड 2 times, तो 2/2 मतलब 4। तो चलो हम लोग एक सिंपल सा टेबल बनाएंगे बच्चों। देखिए ये 4 रोज है, HHTT, 2 बार H 2 बार T, HTHT। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन, बराबर है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन, दोनों बार H आने का। H का प्रोबेबिलिटी कितना है, 3/4। So this will be 3/4 into 3/4, so this will come to 9/16। पहली बार H आने का प्रोबेबिलिटी 3/4, दूसरी बार भी आया 3/4,
दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ये मल्टीप्लाई होता है। पहली बार एच आने का प्रोबेबिलिटी 3/4, दूसरी बार टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/4, तो ये हो गया 3/16। पहली बार टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/4 और दूसरे टाइम में एच आने का प्रोबेबिलिटी 3/4, तो ये हो गया 3/16। एंड टेल का प्रोबेबिलिटी 1/4, दूसरी बार भी टेल आएगा 1/4, तो ये हो गया हमारा 1/16। बराबर है, समझ गए। अभी 2 बार कॉइन हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। बराबर है, तो नंबर ऑफ टेल्स कितना हो सकता है, एक तो 0 होएगा, 1 होएगा या 2 होएगा। तो यहां देखिए नंबर ऑफ टेल्स, मैं यहां लिखता हूं नंबर ऑफ टेल्स, ये टेबल से आपको अच्छी तरह से आएगा। ये एग्जाम्पल फिर से एक बार करो, समझ गए। नाउ नंबर ऑफ टेल्स यहां कितना है बच्चों, दोनों हेड है, तो यहां 0, यहां टेल कितना है 1, यहां टेल कितना है 1, यहां टेल कितना है 2। बराबर है, समझ रहे हैं आप। तो नंबर ऑफ टेल्स 0, तो प्रोबेबिलिटी कितना है 9/16, तो यहां 9/16 आ जाएगा। बराबर है बच्चों। नाउ यहां 1 तो ये भी है ये भी है, सो इट इज 3/16 प्लस 3/16, ये हो गया 6/16। और 2 बार टेल आएगा, एक ही है यहां 1/16, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 0 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी 9/16, 1 एक ही बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी 6/16 और 2 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/16। समझ गए बच्चों। तो 9/16 प्लस 6/16 प्लस 1/16, इसका एडिशन कितना होना मांगता है बच्चों, आता है क्या, देखो डिनोमिनेटर इज 16, 9 प्लस 6 प्लस 1, 6। समझ गए। तो ये हमारा गलती नहीं है। देखो हमने एक बार गलती किया था काउंटिंग में, तो अगेन आई एम टेलिंग, मेकिंग मिस्टेक इज नॉट अ क्राइम, बट नॉट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक इज अ क्राइम। तो मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि हर एक टाइम एग्जाम्पल सॉल्व करते टाइम एक स्टेप किया, 2 स्टेप किया, चेक करो, फिर से 2 स्टेप किया, चेक करो, फिर से 2 स्टेप किया, चेक करो। तो इसकी वजह से आपको इमीडिएटली मिस्टेक मालूम पड़ेगा, आप रेक्टिफाई करते हैं तो फाइनल आंसर आपका बराबर आएगा। समझ गए बच्चों। चलो नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व फर्दर एग्जाम्पल्स। अभी नेक्स्ट वीडियो 3B में करने वाला है, एंड 3B में वी विल सॉल्व मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल। तो 3B में जो हम लोग एग्जाम्पल करेंगे 3A and 3B, if you master these examples, at least for Maharashtra board, discrete random variable, your chapter is finished. 100% marks in discrete random variables. और मैं आपको फिर से वही बोल रहा हूं, मेरे वीडियो आप केयरफुली देख लीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स एंड कंसेप्ट, एंड थर्डली especially for Maharashtra people and also applicable for other state, solved examples आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके solved examples स्टडी करके मेथड समझा के लीजिए। If you study like this for math, out of 80 you will get more than 75. 5 मार्क खाली इधर उधर कभी आपने मिस्टेक किया तो, अदरवाइज आई एम गारंटिंग दिस मेथड विल गिव यू 80 आउट ऑफ 80। समझ गए बच्चों। चलो
थैंक यू। अभी अगला भी वीडियो देख लीजिए। थैंक यू।